यस सर। ठीक है, लिखिए। अच्छा, कल की क्लास का ही बच्चों टाइम सेम है ना, बिल्कुल सेम टाइम है, कोई चेंज नहीं है। लिखिए, ionic and covalent bonds, ionic and, सर आप वापस से रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। अरे है ना, सर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ। सुन लीजिए सही बच्चे। अकॉर्डिंग टू इट, a covalent bond has some ionic character. A covalent bond has some ionic character, and an ionic bond has some covalent character. An ionic bond has some covalent character, and a covalent bond has some ionic character. बस इतना बोला है मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। लिखिए, ionic and covalent bond, ionic and covalent bond are two extreme types of bond, two extreme type of bonds, even in case of pure ionic bond, even in case of pure ionic bond, some covalent character is also found. Full stop. When cations and anion, when cations and anions are brought together, the positive ion attract the electrons of anion. The positive ion attract the electrons of negative ion or anion. This results into distortion. This result into distortion of electron cloud. Distortion of electron cloud around anion. Electron cloud around negative ion. Negative ion. Full stop. This distortion of electron cloud is known as polarization. This distortion is known as
polarization and the power of polarization of cation to distort power of polarization of cation to distort, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, power of polarization of cation to distort electron cloud of negative ion is called polarizing power, and in terms of negative ion it is called polarizability. हाँ जी बेटा, कोई आ जाता है दरवाजे पर तो जाना पड़ता है, कभी कोई अब ये जो आपको बताया इसको सिर्फ फटाफट से कंप्लीट करिए। As a result of polarization, there is decrease of positive as well as negative charge. There is decrease of positive as well as negative charge. This leads to covalent character. Thus, Fajan's rule can be summarized as covalent character is directly proportional to polarizing power of cation. Covalent character is directly proportional to polarizing power of cation, directly proportional to polarizability of anion. Covalent character is directly proportional to polarizing power of cation, directly proportional to polarizability of anion. Second point, polarizing power of cation is inversely proportional to size of cation.
polarizing power of cation is inversely proportional to size of cation, directly proportional to charge. Third and last, polarizability of anion is directly proportional to size of anion, directly proportional to charge, directly proportional to charge. अभी ये सारा समझा होगा, बस ये पूरा कर दूं। लिख लिया भाई? हाँ जी। अब पजान सूलका में ये भी जो मैंने आपको 7-8 लाइन लिखवाई, 8-10 लाइन लिखवाई, सबको मिलाकर एक लाइन लिखवा रहा हूं QSP के फॉर्म में। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, QSA। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी? लिखिए, स्मॉलर द कैटाइन, larger the anion, smaller the cation, larger the anion, greater the charge, more will be the covalent character. ये है QSA, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। स्मॉलर द कैटाइन, लार्जर द एनाइन, ग्रेटर द चार्ज, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। हैव यू नोटेड? Yes, sir. ओके, हाँ जी। सारे पॉइंट समझा हुआ मैं। एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट लिखा रहा हूं पहले, उसके बाद एक वन वन करके मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा। लिखिए, स्पेशल पॉइंट। मुझे ऐसा याद है कि आपको एक बार मैंने PNG और NG के बारे में बताया था। If you remember, in the beginning of this chapter, I would like to ask you about full form of PNG and NG. Pseudo noble gas. Noble gas and pseudo noble gas. Noble gas or noble gas. Noble gas configuration and pseudo noble gas configuration. क्या होता है noble gas configuration और pseudo noble gas configuration? Noble gases NH2 NP6 और pseudo noble gases NH2 NP6 ND10. और PNG क्या होता है? NH2 NP6 ND10. ND10. NP6 ND10. ND10. याद आ गया क्या? Sir. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट की हेडिंग डाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। cations with
18 electrons in outermost shell. यहां काउंट कर लेना 18 इलेक्ट्रॉन सारे होंगे. Cations with 18 electron outermost electronic configuration are known as pseudo noble gas cation. Such cations have greater polarizing power than that of noble gas cation. It is because of greater nuclear charge. It is because of greater nuclear charge. For example, in CuCl and NaCl, cuprous ion and sodium ion have almost identical size. इस लाइन को हाईलाइट कर लेना. Have almost identical size. Still, CuCl is more covalent than that of NaCl. It is because Cu plus 1 has PNG, while Na plus has Ng, noble gas configuration. It's PNG and Ng. आगे लिखें. आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लिए होंगे. यस या नो? Yes, sir. देखिए अब आगे. This can be proved. By comparing their solubility in water, and by using their melting points. Full stop. CuCl being covalent in nature, is less soluble in water, while NaCl being more ionic
completely soluble in water, completely soluble in water. Moreover, melting point of CuCl is 705 Kelvin, and that for NaCl is approx 1073 Kelvin. आप सभी इस बात को समझते होंगे कि आयनिक कंपाउंड्स पानी में ज्यादा सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। फिर से सुन लीजिए, CuCl और NaCl में CuCl ज्यादा कोवेलेंट है PNG की वजह से, और ये ज्यादा आयनिक है। आयनिक कंपाउंड पानी में ज्यादा सॉल्युबल होंगे और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग CuCl एंड NaCl। अब देखो भाई, मैं एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूं, अभी जो है क्लास जो हो रही है वो 10:50 होने वाले हैं, है ना। 10:50 में मैं क्लास छोड़ दूंगा, फिर कल स्टार्टिंग को पूरा लेंथ में समझाऊंगा, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं मिलेगा आज। तो 10:50 पर आज मैं आपकी क्लास छोड़ूंगा, कल 9:40 से स्टार्ट करूंगा। अभी मैं बस आज समरी बना दूं, कल समझाऊंगा सारे एग्जाम्पल देकर। आज की पहली बात ये थी कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात, स्मॉलर द कैटाइन लार्जर द एनाइन ग्रेटर द चार्ज। जितना छोटा कैटाइन होगा, जितना बड़ा एनाइन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, है ना। अब मैं चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास समय है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये जो मैंने आपको बताया कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम रखने के लिए छोटा कैटाइन, बड़ा एनाइन, ज्यादा चार्ज, 3 कंडीशन है। एक बार जरा सही बच्चे बोल दो, कौन सी 3 कंडीशन मैंने बताई, बोलिए। Smaller the cation, larger the anion, greater the charge. More will be the covalent character. वो जो टेक्निकल टर्म है पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी, वो मैं कल समझाऊंगा। अभी मैं इन तीनों लाइनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सारी बात। मैंने आपको दिया NaCl, एक दिया मैंने आपको LiCl। अच्छा, फजान सूट की में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक आयन को कांस्टेंट रखते हैं। क्या कहा मैंने? फजान सूट को जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यूज करते हैं, एक आयन को कांस्टेंट रखते हैं। तो क्लोराइड को कांस्टेंट से छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताइए, लिथियम आयन और सोडियम आयन में कौन छोटा है? लिथियम स्मॉलर है। अब आपसे पूछा गया LiCl और NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, तो आप दिस इज मोर कोवेलेंट। क्यों लिखा आपने? स्मॉलर द कैटाइन, जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, वन मोर, MgCl2 SrCl2, which one is more covalent? MgCl2। Sir, MgCl2 क्यों? सर वो स्मॉलर साइज है, स्मॉलर देन साइज, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो आप लिखेंगे MgCl2 is more covalent। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, LiCl and NaCl, LiCl NaCl, ये लिखें LiCl is more covalent। LiCl is more covalent
ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम आयन। अब देखो MgCl2 SrCl2 आंसर बताओ, क्या बताओगे? विच वन इज मोर कोवलेंट? MgCl2. अच्छा क्वेश्चन उल्टा होता, विच वन इज मोर आयनिक? SrCl2. SrCl2। तो लिखिए विच वन इज मोर कोवलेंट, MgCl2 SrCl2? आंसर इज MgCl2। अच्छा रीजन क्या है? व्हाई इज इट सो? So smaller the Because of Smaller in size than smaller size of magnesium ion। ठीक है, ये सोच समझ के बताना। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, which one is more covalent? FeCl3. ferric chloride, FeCl3. 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 फेरस आयन, इसमें देखो क्लोराइड, क्लोराइड तो कांस्टेंट है, बेकार है। ये फेरस है और ये फेरिक है, Ferric. ज्यादा चार्ज है। मैंने लिखा है स्मॉलर द केटाइन, लार्जर द एनाइन, ग्रेटर द चार्ज। ज्यादा चार्ज इस पर है तो ये ज्यादा कोवलेंट होगा। दिस वन इज मोर कोवलेंट ड्यू टू ग्रेटर चार्ज। लिख लीजिए FeCl3 इज मोर कोवलेंट। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, पूरी बॉन्डिंग याद करके बैठिएगा। कल आपका टेस्ट भी है और कल आपकी क्लास भी है, दोनों चीजें हैं कल। टाटा बाय बाय, नमस्कार। जितना कॉपी में कराया केवल वही आएगा, उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें।